are going to give us their final verdict. I must say that it has been a very tough competition. After watching the screening of the movies, the kind of genres you all have provided us with, such a magnificent work that you guys have done. It's truly commendable. And a short brief about Newplex Film Festival. It has provided the opportunity to the young, talented filmmakers to project their work. And of course, this has bridged the gap between the unexplored talent and the film fraternity. I would like to thank Mr. Jameel Baig for providing us the film for the Newplex facility and contributing towards this event. And of course, special thanks goes to the sponsors, Newplex Cinema and the JB Films, for providing us with the sponsorship of this event. And I would like to give special thanks to the jury members for taking out their precious time and dedicating their efforts to this noble cause. A brief introduction about the jury members. We have with us Mr. Nadeem Baig, who is Pakistan's renowned director, actor, producer, and writer. Some of his famous works include Jawani Phir Nahi Aani, Punjab Nahi Jaungi, Dil Lagi, of course we all know, Mere Paas Tum Ho, Sinf-e-Ahan, Pyare Afzal, and many others. And we have with us Bigul, who is Pakistan's renowned screenwriter and director. Some of her famous works include Kaun Kamar Ara, Firdaus Ki Dozakh, Talkhiyan, Dar Si Jati Hai Sila, and many others. Then we have Siraj ul Haq, who is Pakistan's renowned television director. Some of his famous works include Parsa, Tum Mere Kya Ho, Koi Chand Rakh, Fitur, Tere Bin, Dil Banjara, and many others. And then we have Zanjabil Asim Shah, who is Pakistan's renowned screenwriter. Some of her famous works include Saath Pardon Mein, Bashar Momin, Bala, Cheekh, Pyar Ke Sadke, and many others. Okay, so here comes the big surprise. Yesterday somebody was asking me that what surprise have you kept for this event? And the surprise is this, that the best film nominated by our jury members will be winning a prize of 100,000 rupees and a big dummy cardboard check. I hope you like the surprise now. Now, before we announce the awards, we will have a quick, brief question and answer session, and you may ask any questions you deem important from the jury members. Can we circulate the mic, please, the audience? So a lot of times I've seen in film festivals abroad, Bahir, what they do is, apart from an award or something like that, what they also do is have a workshop session or plan something to sort of collaboration with the filmmaker who has won that thing, etc. Do you think Newplex or film festivals in the future should have that sort of a format as well, where they also, apart from awards and prize money, they should have a workshop or a collaboration with an experienced director, producer, etc., with that newly filmmaker or director? Reason to have a festival is to bridge new makers and the production companies and the people who are looking for new talent. So the part of your question when you said that, you know, these activities, yes, these activities should keep happening much more than what the number is right now. Workshops, I think this will eventually lead to that too, where we will have workshops from acting to direction to screenplay writing. So yes, these things will eventually become a bridge between where the opportunity is and where the talent is. I would just like to add, can I have your name, please? Sarosh.
Okay, sir, thank you for the question also. I would like to say that this is not only one way, you know. It's not that the new filmmakers are here to learn something from us. Actually, we are learning from you as well. So there is a growth of industry also that we're looking at. And yes, of course, this is a great initiative already that they're bridging the gap. They have asked the new filmmakers to come and showcase their films over here. And we do believe and hope that in future, as Tuba is going, she's pretty visionary at this age. And she is going to arrange, you know, some film workshops also, not for you guys, for us also. You know, for my own growth as a screenwriter, would like to interact and work with you guys to have new ideas, and we work together. So this togetherness needs to happen. Culturally, we are not cinema goers, but let's see, let's hope for the best. I wanted to ask that what do you guys think कि पाकिस्तानी सिनेमा कहाँ जा रहा है, like after 5 years, 10 years, like indie cinema is like अब establishing माशाल्लाह. क्योंकि मैं फिल्म मेकर में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कराची में like big scale film festival हो रहा है, क्योंकि मैं expect करता हूँ कि और हों, क्योंकि like I'm studying film in Lahore और I'm a student as well. तो बस मुझे पूछना था कि जजेस का क्या ख्याल है next 10 years में where do you guys see Pakistani cinema going? It's not important where will be the cinema after 10 years. What is important is that where we take the cinema in next 10 years. Cinema is you know, more than 100 years old. एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फिल्में देखते हैं. So in 10 सालों में while I was watching all these films, so I realized that we have a world. We are someone that we all work professionally. ड्रामे हमारे फिल्में चलती हैं सब कुछ. So I realized there is a parallel world around me which I didn't know about, which you guys are. Yes. That you guys are making films which I had no clue that someone is making such good films. So this was a very, very interesting thing for me to learn actually. So I'm happy that I'm part of it, and next 10 years should be good. Where the cinema is going and how, I think we all should collaborate and take it wherever, you know, we can for the best. Thank you. More questions? Assalamu alaikum. As a struggling actor, you know, and kind of observing the content जो पहले हम बना चुके हैं, especially पाकिस्तान में, और जो अब बन रही है, बात करते थे. तो जब उनसे पूछा जाता था कि आप किस तरह की कहानियाँ पसंद करते हैं, तो वो यूजुअली ये कहते थे कि जो माशरे के बहुत ही तल्ख हिस्से हैं और जो बहुत ही डार्क ट्रूथ्स हैं, स्पेशली मैंने हसीना मोइन जी को काफ़ी दफ़ा ये कहते हुए देखा कि उन सारे एस्पेक्ट्स को जो बहुत ही मुश्किल हैं और जो देखने में बहुत ही सख्त हैं, उनको शायद एक टेलीविज़न मीडियम पे दिखाना उतना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सोसाइटी में उसका कुछ भी असर हो सकता है. लेकिन एट द सेम टाइम एज समवन, यू नो, जो इंटेलेक्चुअली अपने आसपास सोसाइटी ऑब्जर्व कर रहा है, हम ये कह सकते हैं कि हम उन एस्पेक्ट्स को कम्प्लीटली नज़रअंदाज नहीं भी कर सकते. और रीसेंट टाइम्स में कुछ ड्रामाज जिन्होंने थोड़े डार्क टॉपिक्स को चूज़ किया है, उन पे काफ़ी हमें क्रिटिक भी मिलती है और लोग बुरा भी मनाते हैं उस बारे में. तो एज़ क्रिएटर्स मुझे आप लोगों से पूछना है कि आप इस बारे में किस तरफ स्टैंड करते हैं कि क्या हमें अपनी स्टोरीज़ में जो हमारे माशरे में बहुत कुछ बुरा हो रहा है वो हमें दिखाना चाहिए, या फिर वो दिखाना अच्छा नहीं है, उससे कोई बुरा असर पड़ सकता है एज़ लॉन्ग एज़ वो रिस्पॉन्सिबली बनाया जाए. तो इसमें आपकी क्या टेक है? उसमें ना दिखाना मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि सब कुछ एक क्लिक पे पड़ा हुआ है आपके हाथों में. एक सेल फ़ोन होता है जिसमें आप जहाँ भी जाके, हम नहीं दिखाएंगे, कोई और दिखा देगा, कोई और हो सकता है उस एंगल से दिखाए कि अगर हम दिखाते तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आपको बात समझा सकते. मैं इसमें बिल्कुल भी एग्री नहीं करती कि हमें जो हादसात, हम तो हादसे ही कह सकते हैं, वाक़यात हैं, जो सख्तियाँ हैं जो हमारे माशरे में हो चुकी हैं, जो बिटरनेस है, जो तलखियाँ हैं, उनको हम बताएं ना, और ना बताने से ये बुराइयां नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता है. ऐसा बिल्कुल भी मेरे ख़याल से कि चीज़ों को छुपा देना मसले का हल नहीं होता है.
बल्कि मुझे लगता है कि अगर हम बताते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में, बहुत सारी जगहों पे, मैं कहती हूँ चलें कम से कम 4 लोग भी अगर इबरत पकड़ लें और डिसाइड कर लें और उसका हमारी सोसाइटी पे बहुत अच्छा असर पड़ जाए तो वो भी हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है। और वही चार कभी 8 होंगे, फिर और आगे इसी तरह से रोशनी फैलती है। जो आपके आसपास हो रहा है आप उसको सामने ले आइए, रिगार्डलेस कि वो अच्छा है या बुरा है, उसको किसी तरह से भी उसको मोड़ना तोड़ना छुपाना बिल्कुल भी कोई सही काम नहीं है। इट्स नॉट एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट फ्रॉम एन आर्टिस्ट। और एक ये बात भी इसमें है कि क्या दिखाया नहीं जाता, क्या दिखाया नहीं, जिसकी इजाज़त नहीं मिलती दिखाने की, ये 2 मुख्तलिफ शक्लें हैं। सेंसरिंग के इश्यूज़ अलग होते हैं और कितनी एक्सेप्टेंस है व्यूअरशिप में भी, व्यूअर्स में भी, कि वो देख रहे हैं अगर तो कितना एक्सेप्ट करते हैं इस सारी चीज़ को जो आप दिखा रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ही काम होता है आपके एक्सप्रेशन का, कि आप प्रोजेक्ट कर दें। और आपका काम बिल्कुल ये नहीं होता कि आप इस्लाह कर रहे हैं माशरे की। आई डू नॉट क्वालिफाई माई सेल्फ फॉर दैट एट ऑल। और मेरा काम सिर्फ यह है कि ये हो रहा है एंड आई हैव टू लीव अ क्वेश्चन। आपके पास मैं सवाल छोड़ के जाती हूँ कि यह सही है या गलत है, इसका फ़ैसला फिर आप लोग कीजिए। मतलब वो हम लिखने वालों का काम बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि हम जो नए फिल्म मेकर्स हैं, नई कहानियाँ बना रहे हैं, नई फिल्में बना रहे हैं, लेकिन जो इस टाइम पे पाकिस्तान सबसे बड़ा अलमिया है कि जो सिनेमा है वो मिडिल क्लास तबके की पहुंच से दूर है। तो जो नए सिनेमा मालकान हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, क्या वो कुछ ऐसे इकदाम ले रहे हैं कि वो जो सिनेमा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे? या क्योंकि अगर हम नई फिल्में बनाते हैं और वो लोगों तक पहुँचती ही नहीं है तो हम शायद 1 फिल्म या 2 फिल्म के बाद हमारी आवाज़ें कहीं दब जाएंगी। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा कोई ऐसा इकदाम हो रहा है कि जो हमें हौसला दे नए फिल्म मेकर्स को कि हमारी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? जी, बहुत सही सवाल है आपका। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम लिए हैं इसके हवाले से। जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी नदीम भाई को हम सबको पता है कि अब एक गवर्नमेंट ने फंड अनाउंस किया है जिसमें नए फिल्म मेकर्स अपने आइडियाज़ के साथ पिच करेंगे और जिसके स्क्रिप्ट में, और एक गवर्निंग बॉडी होगी वो जो उसको सिलेक्ट करेगी। अगर जिस भी नए फिल्म मेकर के स्क्रिप्ट में होगी जान कि पोटेंशियल होगा तो उसे ग्रांट भी मिलेगी, उसे फंड भी मिलेगा, उसे लोकल प्रोड्यूसर्स जो फिल्म मेकर्स हैं वो उसके साथ कोलैबोरेट भी करेंगे। Sir, More मैं एक questions? I just want to add one thing. Sorry, can I? Yeah, Okay, please. sorry. I just want to add, यहाँ से आपने सवाल किया था, आपने बिल्कुल बेहतरीन बात कही है जी। हमारे पास सिर्फ एलीट सिनेमाज हैं, हमारे पास सिर्फ एलीट स्क्रीन्स हैं। वी आर नॉट केटरिंग द मैसेस। ये अवामी होने चाहिए, ये जगह जगह ये स्क्रीन्स होनी चाहिए जैसे कि थी भी। और ये आम लोगों से एक डायलॉग इस्टेब्लिश होता है फिल्म का, एक आम लोगों से एक मकालमा है जो कि जब तक वो नहीं शुरू होता सिलसिला तब तक ना फिल्में अच्छी बन सकती हैं, ना फिल्में देखने वाले आ सकते हैं, ना वो कल्चर डेवलप हो सकता है। तो एक कल्चर डेवलप होने के लिए हमें बिल्कुल अवामी स्क्रीन्स, पब्लिक स्क्रीन्स चाहिए, हमें मैसेस का सिनेमा चाहिए, हमें एलीट सिनेमा नहीं चाहिए जहाँ के टिकट्स भी हमें एक्सपेंसिव लगते हैं, जहाँ के हमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी मिलती हैं, एक आपको पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है। देन यू नेवर कम अलोन टू वॉच अ फिल्म, तो आपको किसी को साथ जो लाना है उसके पैसे भी भरने पड़ते हैं। तो इट इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी एलीट, इट्स अ लग्जरी टू वॉच सिनेमा इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली। बट लेट्स होप, जैसे अभी सिराज ने बात की है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि स्टेट हैज़ टू प्ले इट्स रोल। उसके बगैर ये नहीं हो सकता। आप पुराने सिनेमा वालों की बात करें तो वो तो अब चले गए, वो तो नहीं है, ये नए लोग हैं एंड हुएवर इज़ देयर। देखा जाए तो जी बिल्कुल सही है, बट अगेन इट्स नॉट अ सिनेमा, वो स्क्रीन तो नहीं है, वो एक कल्चर आपको डेवलप करना। लेकिन जैसे भी हैं, तूबा इज़ वेरी वेरी यंग, एक बच्ची को ये विजन है कि हम तमाम फिल्म मेकर्स को लेकर आएँ और इस जगह को शेयर करें उनके साथ, तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। इन्हीं सिनेमाज में अगर यही स्पेस क्रिएट कर दी गई है फॉर एवरीबडी तो बहुत अच्छी बात है। And it's sad that new filmmakers are worried about the future of cinema. So मेरा ख्याल है, let us be worried about that. And you think about the stories you want to tell.
मेरा क्वेश्चन यही इंटरकनेक्टेड ही है कि अब ये जो ऑलरेडी आप लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, स्टैब्लिश्ड लोग हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, तो आपने जब हमारी पोटेंशियल देख ली कि विद द लिमिटेड बजट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हम लोग ने इतना अच्छा फिर भी प्रोड्यूस कर लिया दैट पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग इट, तो अब हमें मतलब इससे ज़्यादा अगर रिसोर्सेज मिल जाएं, नॉट जस्ट इन द मॉनेटरी मैटर बट ऑल्सो अगर थोड़ी कोलैबोरेशंस हो, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? लाइक वेयर डू वी फाइंड द राइट प्रोड्यूसर्स, राइट मेंटोर्स जो हमें आगे का रास्ता दिखा दें? मतलब वर्कशॉप्स तक ठीक है हमने सीख लिया, बट हम उसको प्रैक्टिकली कहाँ लेकर आएँ और कौन हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आओ हम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, अपना टाइम अपना पैसा आप लोगों के ऊपर कि आप इससे बेहतर काम करें? तो ये डायरेक्शन कहाँ की है? In the first question I mentioned briefly about this कि इस फेस्टिवल का मकसद, ये दुनिया में कोई भी फेस्टिवल्स का मकसद यही होता है कि लोगों का काम ज़रा ज़्यादा बड़ी ऑडियंस के सामने लाया जाए और उन लोगों के लिए के सामने लाया जाए who are working professionally in the business. So I think we all are those people who should give you and who will give you opportunity. जिस की फिल्म में किसी भी हवाले से कोई भी पोटेंशियल नज़र आया है, सो वो जो मैं बात कर रहा था ना, दैट बिकमिंग अ ब्रिज बिटवीन द makers and the producers, I think this is the start and it will go there. I was already thinking while watching these are the directors and the writers or the cameraman and actors that I should pick and work with me, in any capacity. Yeah, same here. I have really impressed lots of new filmmakers with their original voice, with their really very stunning ideas. Even the guys who did in a sci-fi, which is not our genre, but they really work well. Or definitely we are also looking forward के collaborate हो, हम उनसे मिलें और उनसे बात करें. और मोस्ट स्टूडेंट्स के पास सिर्फ शॉर्ट्स, क्योंकि वो स्टडी सिर्फ शॉर्ट्स की करते हैं. फीचर लेंथ की स्टडी इज़ डिफरेंट, जो आपको शायद स्कूल अपने कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती. तो आप जब अपने आइडियाज़ के साथ आते हैं तो आपके स्क्रीन प्ले में फीचर लेंथ की वो डेप्थ नहीं होती, क्योंकि जो फाइनेंसर है, जो प्रोड्यूसर है, वो उसी प्रोजेक्ट को उठाएगा जिसका अंदर फीचर लेंथ कमर्शियल वैल्यू हो. तो आप अपनी इस चीज़ को ग्रो करें कि हाउ आई कैन रियली ब्रिंग मास्टरपीस, अ वेरी गुड स्क्रीन प्ले, जो मैं आगे अपने प्रोड्यूसर को किसी के सामने पिच करूं तो वो हो. और नेक्स्ट फेस्टिवल, अगर ये अभी तो छोटा फेस्टिवल स्टार्ट है, अभी ये बच्चा है, जब ये बड़ा हो तो शायद आगे चल के पिच कॉन्टेस्ट भी हों कि आप अपनी फीचर लेंथ पिच करें और फिर हम आपके लिए फाइनेंसिंग के मौके भी लेकर के आएँ. इट्स पॉसिबल. बस लास्ट सवाल है मेरा. जैसे सर ने कहा कि फीचर लेंथ की इतनी डेप्थ नहीं होती स्टूडेंट फिल्म्स में या कोई भी इंडी फिल्म के अंदर. आई अग्री विद हिम बट आई ऑल्सो सॉर्ट ऑफ स्लाइटली डिसएग्री. I think एक प्रॉपर 40-50 मिनट शॉर्ट से उसके बाद कोई फीचर फिल्म बना सकता है एक अगर बिगिनर फिल्म मेकर है. फॉरेन आई थिंक पर्सनली कि फीचर के लिए बहुत हार्ड डालना बहुत एक चैलेंज है. तो मतलब मेरा ये मानना है कि अभी जो प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तान में, आई थिंक इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि थोड़ा सा ना और इंडी फिल्म मेकर्स को और सपोर्ट करें. और बजट में चाहिए होता है बजट, और अपनी खुद की जेब से लगाना बहुत मुश्किल होता है. मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको. नहीं, और बिल्कुल सही कह रहे हो. लेकिन जितने भी आप लोग बजट से फिल्म बना रहे हो ना, अगर आप कोशिश करो कि इतने में आप फीचर लेंथ बनाने की कोशिश करो, 90 मिनट इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जाओ और ट्राई टू मेक 90 मिनट, जितने भी लो बजट पे एक 90 मिनट जिसका स्टार्ट मिडिल एंड, ठीक है ना. मोस्टली आप इसमें स्टार्ट मिडिल एंड, आपको क्या चाहिए? एक फीचर लेंथ वाली एक डेप्थ हो, स्क्रीन प्ले हो, भले आप 4 कैरेक्टर्स के साथ आपकी इंडी मूवी हो, एक लोकेशन हो, बट इट हैज़ टू बी कंप्लीट फीचर लेंथ पोटेंशियल. और आप इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में उनको लेकर जाओ, वहाँ पे जहाँ पे फिल्म बाजार से हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बिकॉज जो फीचर लेंथ होगी वो भी कहीं आपकी सेल भी हो सकती है और कहीं से आप पिक भी हो सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट विल नॉट गो एनीवेयर.
एक बस follow up I question. think जो आप पूछना चाह रहे हैं, I'm not going to judge you for. I just want to praise you for the amount of budget जिसके अंदर आप लोगों ने ये मुमकिन किया. I was amazed by the good cinematography and good production design. I think आप 6 मिनट there are films जिसमें से जो मेरी एक फेवरेट फिल्म है वो उसकी ड्यूरेशन शायद 6 मिनट्स है, 6-7 मिनट्स है. सो इट डजेंट मैटर द लेंथ. Probably Siraj is talking about the when you make professionally films and then you get the financing and then you get the market. I think at this point it's the opportunity which is required, जो हमें देनी चाहिए और आपको चाहिए. So I think this is what you're doing is remarkable in this budget and resources. Thank you so much. It was quite a productive session. One thing I need to add is that we all must know that Newplex Film Festival has been conceptualized and it's the brainchild of a young, vivacious and talented female. She's a businesswoman and she's also an aspiring filmmaker. She reached a stage in her life where she thought she would give back to the society in form of this great initiative. May I have a big round of applause for Tuba J. Beg, please. And of course for Jameel Sahab for giving us the space, Newplex facilitation, and contributing to this great cause. And ladies and gentlemen, finally, we have reached the main course of the event where we will be announcing the award-winning short films for the set categories. एक चीज़ मैं ऐड कर दूं जी, ये अनाउंस करने जा रहे हैं जस्ट टेक द लिबर्टी जो से कि हमने द रिजल्ट्स आर 100% फेयर. Absolutely. I am the happiest person in the jury members to say this. कि मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि ये 100% फेयर रिज़ल्ट्स हैं. हमने आर्ग्यू किया है, हमने झगड़ा किया है, हमने बहस की है, हम बार बार पलट कर अपने रिज़ल्ट्स पर वापस गए हैं, तब हमने जाकर इस पर अग्री किया है. इट वॉज़ नॉट एन ईजी डिसीजन एंड आई वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर पुटिंग अस इनटू दैट ट्रबल कि हमारे लिए मुश्किल हो गया था चुनना कि क्या चीज़ अच्छी है. बट ये बात बिल्कुल अपने दिल में रखिएगा कि 100% मैं अपनी गारंटी के साथ ये बात कह रही हूँ कि बिल्कुल फेयर रिजल्ट्स हैं जो अनाउंस होने जा रहे हैं. अच्छा, दूसरी बात है कि हार जीत होती रहती है. इस जगह से कोई भी फिल्म में अगर कोई जीतता है जो नहीं भी जीतता तो डोंट वरी, आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है. Yes, बहुत ही अच्छी फिल्में बनाई हैं एवरीबॉडी, तो इसको ये नहीं समझिएगा. The award for the best screenplay goes to Vachan by Kaldeep Khatri. Award for the best production design goes to Shere Mashook by Selina Khan. Award for the best sound design goes to Where Is My Yellow by Serosh. Award for the best editing goes to Reverie by Sharmeen Ali. The award for the best cinematography goes to The Silence After the Storm by Alina Rizwan. The award for the best actress goes to Parwaze Darshab by Safar Ali Danish, sorry. So the actress name is Hora Batul, who performed in this movie, and the director is receiving the award on her behalf. The award for the best actor goes to, any guesses? That's my favorite actually. Psycho Taxi.
by Ali Raza. And the best director goes to, any guesses? Any guesses? Haibat by Aman Zubairi. Okay, he's in Lahore. Okay. So finally, we are left with the last award, and this person is going to get the prize of 100,000 rupees, and along with that, dummy, cardboard check. Any guesses for the best film? Any guesses? I don't hear anything. Come on, you can guess it. Oh. It's Vachan by Kuldeep Khatri. I would like to congratulate all of those who won the awards, and of course, I congratulate those who have not won any award, because I feel that you fail only once you stop trying. Never give up on yourself and keep trying, because always remember, sky is the limit. Now, I would like to take the opportunity to appreciate the entire team of Newplex Film Festival. Can we have a round of applause?